Next, you write orbitals and quantum numbers. Heading 2, orbitals and quantum numbers. Write first of all principal quantum number. Bit 1, principal, PRINCIPAL, principal quantum number. Right, it determines the size. It determines the size and to a large extent the energy of the orbital. Size and to a large extent the energy of the orbital. Full stop. Point number 2, इसका ये पहला पॉइंट था. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ही सेकंड पॉइंट राइट. सेकंड पॉइंट में यू राइट इट आइडेंटिफाइज द शेल. And it is represented by the alphabet small m. It identifies the shell and is represented by the alphabet small m. ठीक है. The number of allowed orbital is given by n square. The number of allowed orbital is given by n square. Next, space छोड़ दो, 3-4 लाइन छोड़ दो. After that you write azimuthal quantum number, AZIMUTHAL, azimuthal quantum number. ब्रैकेट में लिखना L. azimuthal quantum number in bracket you write L, small l. ठीक है. Right, first point में write it is also known as orbital angular momentum. It is also known as orbital angular momentum or subsidiary quantum number. Orbital angular momentum or subsidiary quantum number. Orbital angular momentum or subsidiary quantum number. Full stop. Next point इसी का ही लिखो. It defines the 3D shape. It defines the 3D shape of the orbital. It defines the 3D shape of the orbital and also the number of subshells. ठीक है. स्पेस छोड़ दो, 4-5 लाइन, ज़्यादा थोड़ा छोड़ो. ठीक है ना, 7-8 लाइन छोड़ देना. उसके बाद यू राइट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर राइट इट स्मॉल m साइड में लिखो. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन ब्रैकेट यू राइट स्मॉल m. ओके. राइट इट रिप्रेजेंट्स द स्पैटियल ओरिएंटेशन. It represents the spatial orientation, SPATIAL. It represents the spatial orientation of the orbital with respect to standard set of coordinate axes. With respect to standard set of coordinate axes. ठीक है. स्पेस छोड़ दो, 7-8 लाइन स्पेस छोड़ दो. ओके. नेक्स्ट यू राइट स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है. इट रिप्रेजेंट्स an electron's spin around its own axis. It represents an electron's spin around its own axis. ठीक है. सेकेंड पॉइंट में राइट it also represents the spin angular momentum of the electron. It also represents the spin angular momentum of the electron. Spin angular momentum of the electron. ठीक है.
7-8 लाइन छोड़ दो। उसके बाद राइट n डिफाइंस स्मॉल n, small n defines the shell, small n defines the shell and determines the size of the orbital, and determines the size of the orbital as well as energy of the orbital, and determines the size of the orbital as well as energy of the orbital. ठीक है। पॉइंट नंबर 2 बिट 2 में L, स्मॉल l आइडेंटिफाइज द सबशेल एंड डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, स्मॉल l आइडेंटिफाइज द सबशेल एंड डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, एंड डिटरमाइंस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, and also energy in multi electron atom, and also energy in case of multi electron atom, and also energy in case of multi electron atom. Third point, small m represents the orientation, small m उसी में थर्ड पॉइंट में लिखते हैं ना, वहां क्यों लिख रहा हूं? पहले m लिखे फिर l लिखे फिर m लिखो। स्मॉल m रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, represents the orientation of the orbital. Okay, its number, it means, नहीं तो उसी में राइट फुल स्टॉप, it means that the number of orbitals, it means that the number of orbitals is equal to the number of ways, is equal to the number of ways in which they are oriented, is equal to the number of ways in which they are oriented. And small s, next वाला, last वाला, small s refers to orientation of spin of electron, small s refers to the orientation of spin of electron, small s represents the orientation of the spin of electron. देखो अभी कोई भी एटम होता है, सबसे पहले n आता है, n क्या होता है? इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सोचो कोई भी एटम है, न्यूक्लियस है, तो उसके अराउंड क्या रहता है? ऑर्बिटल्स रहता है, तो इन सबको क्या बोलते हैं? शेल। तो पहला शेल को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, दूसरा को 2 से, तीसरा को 3 से, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? जैसे k l m n ऐसे बोलते थे ना, क्लास 8 में पढ़ते हो k l m n शेल, तो k क्या होता है तुम्हारा? n1, l का n2, n3 और इसका n4। ओके, इट रिप्रेजेंट्स, अगर n4 है और एक n3 है तो किसका साइज बड़ा है? 4 का, क्योंकि 4 सेल है वहां पे, 3 में साइज कम। और इट आल्सो रिप्रेजेंट्स एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है इससे। मैं बताऊंगा कैसे होता है, L समझने के बाद आई विल टेल यू हाउ इट रिप्रेजेंट्स द, समझ गए ना? हां राइट, देखो इसको पहला वाला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल, मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच शेल का फार्मूला याद रख लो, 2 into n², इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2n²। ठीक है ना? ये एक फार्मूला यहां पे याद रखो, बाद में समझ में आएगा कैसे होता है, ठीक है ना? नेक्स्ट होता है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? पता है ऑलरेडी, बताओ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स? L represents what? Orientation, shape and 3D shape of the orbital and also the number of subshells. 3D shape और also energy भी रिप्रेजेंट करता है, जहां पे तुम्हारा ज्यादा बड़ा होगा साइज, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली की साइड होगा 3D शेप। तो L को हम लोग कैसे पता करते हैं? 0 to n-1। कैसे पता चलता है? 0 to n-1, ये फार्मूला होता है। सपोज मेरा n1 है, तो L क्या हो जाएगा? 0 to 1-1, तो फिर क्या होगा? 0 to 0, तो मतलब L हम लोग को सिर्फ 0 मिला, 1। सोचो n2 है, तो L क्या हो जाएगा? 0 to 2-1, तो 0 to 1, 0 to 1 मतलब 0 और 1 हो सकता है,
तो L कैन बी 0 और else 1। समझ पाए? सोचो n 3 है तो L क्या हो जाएगा 0 2 3 minus 1 तो 0 2 2 तो क्या क्या होगा L 0, 1, 2। n सोचो 4 है तो L will be 0 2 4 minus 1 तो 0 2 क्या 3 तक तो L क्या हो जाएगा 0 1 2 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हमें जो पता चल रहा है L का वैल्यू 0 1 2 3 करके जाएगा। तो अगर L मेरा 0 होता है तो उसको बोलते हैं s ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? s ऑर्बिटल। L 0 होने से L जब 1 होता है उसको बोलते हैं p ऑर्बिटल। समझ गए? L जब 2 होता है तो क्या बोलते हैं d ऑर्बिटल। ठीक, L जब 3 होता है f ऑर्बिटल। समझ गए ना? आगे जाएगा तो कौन आएगा g, और वहां तक हम लोग जाना नहीं है। तो सबसे पहला समझ लो n 1 जब था तो L खाली 0 आया, मतलब 1 पहला ऑर्बिट पहला शेल के अंदर जो सब शेल है वो कौन सा है? खाली 0 है। तो 1 का सिर्फ s पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? 1 का सिर्फ s ही पॉसिबल है। 2 जब है n 2 में 0 और 1 दोनों आ सकता है तो 2s भी पॉसिबल है 2p भी पॉसिबल है। समझ पाए ना? तो 2 का 2s भी आएगा 2p भी आएगा। 3 में 0 भी है 1 भी है 2 भी है तो 0 1 2 तीनों है तो 2s 2p 2d तीनों आएगा। समझ गए? सर ये 3 था ना? हाँ, तो 3s 3p 3d। और 4 में क्या क्या आ सकता है? चारों आ रहे हैं तो 4s 4p 4d 4f, दिस ऑल 4 आर पॉसिबल। तो कभी पूछेगा अगर तुम्हारे थर्ड शेल में हाउ मेनी सब शेल्स आर पॉसिबल तो तुम फट से निकाल लो कितना पॉसिबल है। ठीक ठीक, SPT क्लियर। राइट इट डाउन। फिर मैं शेप्स भी बताऊंगा तुम्हें, सबका शेप अपना अपना होता है। मैं बता दूं कि यहाँ पे S का शेप जो होता है स्फेरिकल, इसका शेप होता है स्फेरिकल। P का होता है डम्बेल, डम्बेल डम्बेल करते हो ना जो बॉडी बिल्डिंग। हाँ, D का दो तरह का होता है डबल डम्बेल। F का कॉम्प्लेक्स होता है तो वहां से हम लोग को शेप जरूरत नहीं है, ये तीन का याद रखना पड़ता है स्फेरिकल डम्बेल डबल डम्बेल। ठीक है ना? तो सबसे पहला S का जो है S सेल स्फेरिकल है तो उसका शेप कैसे होगा? ऐसा। P में 3 तो होता है, P हैज गॉट 3 तो 3 तो जो होता है एक होता है px, एक होता है py, एक होता है pz। ऐसा क्यों होता है तुम्हें समझाएंगे। ठीक है ना? इसका नेक्स्ट वाला में ठीक है, नहीं तो यू कैन राइट इन द नेक्स्ट थिंग आल्सो। अभी इसमें एजिमुथ में नहीं लिख के मैग्नेटिक में भी लिखने से चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं मैग्नेटिक ही समझा रहा हूं, सोच लो। यू कैन राइट इन मैग्नेटिक उसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को वी रिप्रेजेंट एज -L to L। क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? -L to L। तो सपोज L को मैंने 1 लिया तो m कितना हो जाएगा? सर L को पहले 0, क्योंकि L 0 होने से तो s ऑर्बिटल आता है ना। L को 0 लेने से m क्या होगा? -0 to 0 मतलब 0। ठीक है, L को p के लिए L को हम लोग क्या लेते हैं? 1। तो m कितना हो जाएगा? -1 to 1 तो -1, 0, 1। ठीक है, फिर आएगा D। D के लिए हम लोग L को क्या लेते हैं? 2। L को 2 लेने से m क्या हो जाएगा? -2 to 2 तो मतलब -2, -1, 0, 1, 2। समझ गए ना? तो उसी हिसाब से L अगर 3 होगा किसके लिए होगा? F के लिए होगा। तो F के लिए m कितना हो जाएगा? -3 2 3 तो दिस इज -3 -2 -1 0 1 2 3। कहने का मतलब ये है m s के लिए एक ही आया तो मतलब s में एक ही घर है। s में कितना लोग घर है? एक ही घर होता है क्योंकि 0 है, इसमें -1 0 1 है तो कितना लोग घर होता है? p में 3 घर होता है। d में कितना लोग है? 5 है तो d में कितना घर होता है? 5 घर। तो दिस इज d। f आया तो f में कितना घर आएगा? 7। तो फार्मूला भी इसका एक होता है 1 2 3 4 5 6 7 तो f में कितना घर? 7। So the formula is 12 plus 1। नंबर ऑफ प्लेसेस अगर हम लोग लिखेंगे, नंबर ऑफ प्लेसेस अगर हम लोग देखेंगे तो टेक्निकली लिख सकते हैं 12 plus 1।
इसको टेक्निकली क्या बोल सकते हैं 2l + 1। देखो जैसे कि l 0 है तो 2 × 0 + 1 तो एक घर। l अगर 1 है तो 2 × 1 कितना 2 + 1 तो 3। 2 × 4 + 1 5। 3 × 2 6 + 1 7। समझ रहे हो? तो p में क्या होता है px py pz तो 3 का है। d में 5 तो आता है तो इसका नाम भी हमें याद रखना पड़ता है। एक होता है dz², एक होता है dx² - y², सब सब्सक्रिप्ट में। फिर होता है dxy, dyz, dzx। ऐसे 5 f का हमें नाम नहीं याद रखना है। f तरफ हम लोग जाते नहीं हैं, हम लोग को spd के साथ ज्यादा काम है। f में खाली 7 घर होता है, इतना याद रखो। ठीक है, राइट इट डाउन। नाउ बिफोर स्पिन क्वांटम नंबर, अभी खत्म नहीं हुआ है, वी आर स्टिल इन मैग्नेटिक। सबका शेप देख लेते हैं क्या होता है। तो s का शेप क्या था स्फेरिकल। p का 3 तो है px py pz। तो जब px होता है x एक्सिस में ऐसा डंबल होगा, समझ गया ना? x एक्सिस में, ये कोई सा भी एक्सिस हो फर्क नहीं पड़ता, ये x एक्सिस में। इफ इट इज py y एक्सिस में होगा। और अगर pz है तो xy ऐसे z लेना। 3D में सोच रहे हैं, लाइक दिस z, अंडरस्टूड? नहीं तो इसको ही z ले लेना और यहीं पे दिखा देना, चलेगा वो भी। नाउ पहला क्या था dz²। dz² का शेप कैसा होता है? इसको मैं मान गया z एक्सिस, इसको मान लेता हूँ x या कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है, सब तो परपेंडिकुलर रहते हैं ना। तो z एक्सिस पे इट विल बी लाइक दिस, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर dx² - y², ये x है ये y, ठीक है। dx² - y² डबल डंबल, एक डंबल और एक डंबल, तो इसलिए क्या बोला जा रहा है इसको डबल डंबल, ठीक है ना। और वो खाली डंबल। फिर कौन था dxy। dxy मतलब x एक्सिस देखना आ रहा है कि नहीं फ्रेम में, x एक्सिस और y एक्सिस के बीचों बीच है, दिख रहा है ना? तो x और y बनाना, और x और xy मतलब x और y के बीच में आएगा, लाइक दिस डबल डंबल बट x और y के बीच में। फिर क्या होगा dyz। dyz मतलब इसको y ले लेना और इसको z, तो y और z के बीच में। और क्या था फिर dzx, तो x और z दोनों बनाना। x और z के बीच में, अंडरस्टूड? सो दीज आर द शेप्स। इतना शेप तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एफ का शेप याद नहीं रखना है, स्फेरिकल, डंबल का 3 और इसका 5। बट ये वाला देखो थोड़ा अलग टाइप का है। और ये भी x² - y² वाला x और y के ऑन एक्सिस होगा, समझ गए? अब ये सब बिटवीन एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? s। कोई भी बॉक्स में जब इलेक्ट्रॉन्स रहता है, कोई भी ऑर्बिटल में, सब शेल में जब रहता है, तो इलेक्ट्रॉन्स दो पेयर में रहता है ऐसे। तो एक क्लॉकवाइज रोटेशन, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कैसे होता है? ये जो ऐसे हुआ एरो मार्क इधर, और ये जो ऐसे हुआ, सो दिस वन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग क्या एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर को एक्चुअली बोला जाता है प्लस माइनस हाफ। एक इलेक्ट्रॉन, एक का आधा, आधा एरो मार्क है कि नहीं? एक का हाफ करेंगे तो हाफ, बट प्लस माइनस हाफ। प्लस को अगर क्लॉकवाइज माना जा रहा है तो माइनस को एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना स्पिन क्वांटम नंबर? 2। तो अभी जो तुम्हारा जो डाउट था 2n² कैसे होता है, जैसे कि मैंने बोला 1 का सिर्फ s पॉसिबल, 2 का क्या क्या पॉसिबल है? 2 का s और 2 का p। 3 का क्या क्या पॉसिबल है? 3s 3p 3d। 4 का 4s 4p 4f। तो 1 का सिर्फ s है, सिर्फ s है। तो s में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 का s और p है, s में एक घर और p में कितना घर? 3। तो यहाँ पे तो 2 2 2, टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। 3 का s
P, फिर क्या है D, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 6 8, फिर 10, तो टोटल कितना होगा 18 इलेक्ट्रॉन। कुछ याद आ रहा है? 4 का, 2 S का, फिर D का, फिर कौन आएगा F में कितना लोग हैं 7, तो कितना हुआ टोटल 32। कितना हो रहा है 32 इलेक्ट्रॉन्स। कुछ याद आ रहा है? जो फॉर्मूला हमने बताया था पहले वाले केस में, क्या हो जाएगा 2 × 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच 2, फिर 2 × 2 स्क्वायर कितना होगा 8, 2 × 3 स्क्वायर कितना होगा 9, सो 18, 2 × 3 स्क्वायर इज हाउ मच 18, और यहाँ पे 2 × 4 स्क्वायर हाउ मच 32 इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट आया ना सब में? तो कुछ वायलेट हुआ कि सही है? सही है, समझ गए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना हो सकता है, होता नहीं है बट मैक्सिमम इतना रह सकता है। हम लोग का पीरियोडिक टेबल पहले रहता नहीं होगा बट मैक्सिमम इतना रह सकता है। अंडरस्टूड? तो लिखो अंडरस्टूड। राइट अ क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, associated with principal quantum number n equals to bit 1 n equals to 3, associated with principal quantum number bit 1 n equals to 3 and bit 2 n equals to 4, bit 1 n equals to 3 and bit 2 n equals to 4. Question number 2, using s p d f notation, using s p d f notations, describe the orbitals with following quantum number. Using s p d f notation, describe the orbital with following quantum number. Bit 1, bit A n equals to 2, l equals to 1, bit B n equals to 4, l equals to 0, bit C n equals to 5, l equals to 3, bit D n equals to 3, l equals to 2, bit E n equals to 2, l equals to 3. What is question number 1? Number of orbitals associated with n equals to 3 और एक है n equals to 4, 2 and 3 है क्या? 3 and 4 है, ठीक है। तो n equals to 3 है, तो हम लोग को पता है n अगर 3 है तो l क्या होता है 0 to 3 minus 1, तो 0 to 2 मतलब 0 1 और 2, तो 3 का क्या क्या हो सकता है 3s 3p 3d, तो 3s में तो एक घर होता है, 3p में कितना ऑर्बिटल 3 और 3d में 5, तो टोटल 1 + 3 + 5 हाउ मच 9। तो इसमें कितना हो जाएगा आंसर 9। कितने जगह आया था 9। फिर क्या दिया है n = 4, तो 4 का भी वैसे ही करो। L क्या हो सकता है 0 to 4 minus 1, तो 0 1 2 3, तो 4s 4p 4d 4f, तो 4s में कितना होगा 1 प्लस 4p में कितना होता है 3, d में कितना होगा 5 और f में 7, तो कितना हो रहा है टोटल 16। तो आंसर कितना होगा 16। तो यहाँ पे एक टेक्निक तुम्हें बताता हूँ, ट्रिक। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होता है n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n², और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n कितना हो जाएगा 2n², क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है कि नहीं? एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2, तो इसलिए n² × 2 पे हो जाता है। समझ में? अब इसका बोल रहा है कि इसका सब नाम बताओ क्या है, इन सब का नाम क्या है। ये 2 है और l अगर 1 है का मतलब क्या है p, l का 1 का मतलब क्या होता है p, तो 2p, इसका नाम क्या हो गया 2p। इसका क्या है 4s, 5 का 5f, d तो होता है 2, ये 3 है ना, तो 5f, इसका 3 का 3d
3D इसका 2p नॉट पॉसिबल, लेस क्योंकि इससे छोटा ही होना चाहिए ना। L क्या होता है 0 to n minus 1 ना, तो 2 का तो 0 और 1 ही खाली पॉसिबल है। 0 to 2 minus 1 मतलब क्या होगा 0 और 1 पॉसिबल है। 3 दिया था मैंने चेक करने के लिए कितना IQ है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल होगा, मैं तो ऐसे ही मान से दिया था। राइट, नेक्स्ट टू गिव हेडिंग नोड्स, NODES, right? Nodes, the region, the REGION, the region where the probability density function, the region where the probability density function to find electron, the region where the probability density function to find an electron reduces to zero is called nodal surface. Reduces to zero is called nodal surface or simply nodes. Is called nodal surface or simply nodes. Okay, जैसे कि नोड्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन्स क्या है 0, मतलब कोई चांस नहीं है वहां इलेक्ट्रॉन होने का। तो नोड्स भी दो तरह के होते हैं, एंगुलर नोड्स और एक होता है रेडियल नोड्स। एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है L, डायरेक्टली जो L है वही एंगुलर नोड है, ठीक है ना। एंड रेडियल नोड्स का होता है n minus L minus 1। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियल नोड्स और ये एंगुलर नोड्स। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जब बात होता है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू एंगुलर नोड प्लस रेडियल नोड्स। So angular node is L plus n minus L plus 1, sorry minus 1। तो minus L plus L कट जाएगा तो क्या होगा n minus 1। So this is the formula of what total number of nodes। ये तीन फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, एंगुलर नोड्स है L, रेडियल नोड्स n minus L minus 1 and this one is n minus 1। ओके, राइट इट डाउन। सपोज कोई भी एक एटम है, ठीक है, सपोज देयर इज सम एटम, न्यूक्लियस जहाँ पे चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन होता है, तो Z into E, प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा Z into E, बिकॉज़ Z होता है एटॉमिक नंबर। Z इज व्हाट एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है Z ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है Z, और चार्ज उसका कितना हो जाता है Z into E। तो उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो सबसे जो आउटर मोस्ट शेल है, सपोज दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, तो ये पॉजिटिव आउटर मोस्ट शेल को क्या करता है अंदर की तरफ खींचता है विद सम फोर्स, बट ये जितना फोर्स से खींचता है उतना हम लोग जितना सोचते हैं उससे नहीं खींचता है। क्या होता है इन एनी एटम दो तीन चीजों को पाया जाता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल होता है कि नहीं, आउटर मोस्ट शेल, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल एंड आउटर शेल भी तो होता है, एंड आउटर शेल। देखो ये पॉजिटिव है, ये खींच रहा है, बट यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और वहां पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होगा रिपल्शन। बट इन दोनों को जब मिला के देखते हैं, द नेट अट्रैक्शन इज मोर देन नेट रिपल्शन, इसीलिए स्टेबल होता है। नेट अट्रैक्शन इज मोर देन नेट repulsion, therefore atoms are what stable। अगर रिपल्शन ज्यादा होता तो स्टेबल होता है क्या, झगड़ा ज्यादा हो रहा होगा तो कहाँ स्टेबिलिटी होगा। अगर बॉन्डिंग फैमिली का स्ट्रॉन्गर देन झगड़ा है तो उस फैमिली को क्या बोलते हैं स्टेबल। सोचो जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली में जितना प्यार है वो झगड़ा से ज्यादा है, तो फिर क्या कहलाएगा स्टेबल ही कहलाएगा। समझ रहे हो ना, नेट अट्रैक्शन इज मोर देन नेट रिपल्शन होने से उसको क्या जाएगा एटम्स आर स्टेबल। अब आगे समझना है तो हम लोग जितना, तो इसीलिए एक टर्म यूज होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या बोला जाता है इन सबको जब देखा जाता है, इसको बोला जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोला जाता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट इसका मतलब क्या है
the inner orbital electron are responsible for decreasing the net effect of the protons in the nucleus, are responsible for decreasing the net effect का मतलब क्या है? Attraction. The net effect of the protons या तो nucleus on the outermost what? Shell. On the outermost shell. तो inner orbital are responsible for decreasing the net effect, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? This effect is shielding effect. This effect is what? Shielding. This effect is called shielding effect. ठीक है? और इसके बाद तो जितना चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए था उतना एक्सपीरियंस कर पाता है क्या? नहीं. सो अभी जो द न्यू न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड द न्यू न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर शील्डिंग. शील्डिंग की वजह से कुछ घट जाएगा. आफ्टर शील्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. उसको क्या बोला जाता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या तो उसको बहुत बार में रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव. समझ पा रहे हो? प्रोटॉन का जितना एक्चुअल में अगर ये बीच में कोई नहीं होता तो जितना इफेक्ट होता उतना वो तो नहीं दिखा पाते हैं, थोड़ा कम हो जाता है. किसकी वजह से कम होता है? ये अगर 100 पावर से खींच रहा है तो ये 20 रिपल्शन में भी तो धक्का दे दे रहा है बाहर को, तो 100 और 20 क्या हो रहा है? काउंटर हो गया. तो नेट कितना है? 80. तो जो भी वो घट गया ना वो शील्डिंग इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. And after shielding, because of shielding, the new net nuclear charge experienced is less. Hence, the new nuclear charge is called effective nuclear charge. समझ पा रहे? लिखो पहले. तो एनर्जी तो जनरली अभी तो ये समझे, बट एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल को हम लोग कैसे जानते हैं? तो एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिटल is represented, we can get to know from the n plus L value. तो rule 1, higher the n plus L value, higher is the energy. समझ गए? higher is the energy. ठीक है ना? higher the n plus L value, higher is the energy. rule 2, if n plus L value of two orbitals come same, of two orbitals become same. अगर सेम हो जाए तो क्या करेंगे? we will check the n value. ठीक है? higher the n value, higher is the energy. समझ पा रहे हो या कोई डाउट? सपोज एग्जांपल्स में देता हूं यहां पे. ठीक है? 13p 12s 11d 14s अरेंज एज पर एनर्जी. अरेंज एज पर एनर्जी. तो 13p का n कितना है? 13p का n कितना है? 13p मतलब l कितना है? 1. तो n plus l कितना हो रहा है? 14. तो n plus l इक्वल्स टू इसका कितना है? 14. तो इन सब का भी देखते हैं. n कितना है? 12, l 0. तो नेट कितना है? 12. इसका n कितना? 11 और l कितना? 2. 3 कहाँ? हाँ. तो ये कितना? 11 plus 2 कितना? 13. फिर 14s है तो n कितना? 14 और l 0. तो n plus l कितना आ रहा है? 14. सबसे ज्यादा किसका है? 14. बट इन दोनों का सेम आ जा रहा है. सेम जब आएगा हम लोग किसको देखेंगे? n को. n इसका 13 है उसका 14 है तो किसका ज्यादा होगा? 14. तो 14s. तो 14s ग्रेटर देन 13p. एनर्जी वाइज बोलेगा अरेंज करने के लिए. ठीक है? उसके बाद 12 13 है तो कौन ज्यादा? 13 तो ग्रेटर देन 11d.
ग्रेटर देन 12s। तुम लोग ऐसा जो सोचते हो ना, नंबर जिसका बड़ा उसी का एनर्जी ज्यादा, वो गलत है। देखो यहाँ पे 11 ग्रेटर देन 12 हो गया कि नहीं? तो हम लोग को किसको देखना है? n प्लस एल वैल्यू। जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। बट अगर n प्लस एल वैल्यू भी सेम हो जाता है तो किसको चेक करेंगे? n का वैल्यू चेक करेंगे। हायर द n वैल्यू, हायर इज द एनर्जी। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? Right, filling of orbitals, filling of electrons into orbitals, filling of electrons into the orbitals of different atoms, into the orbitals of different atoms takes place in accordance with Aufbau principle, AUF-BAU, Aufbau principle, which is based on Aufbau principle, which is based on Pauli exclusion principle, PAULI, Pauli exclusion, EXCLUSION, Pauli exclusion principle, comma, Hund's rule of maximum multiplicity, comma, HUND, Hund's rule of maximum multiplicity, and relative energies of orbitals. Written. Next you write Aufbau principle, AUF-BAU Aufbau principle. Right, it states that Aufbau principle, right, it states that in the ground state, of the atoms, in the ground state of the atoms, comma, the orbitals are filled in order of their increasing energies. The orbitals are filled in order of their increasing energies. समझ गए? In order of their increasing energies. उसके बाद 10 लाइन छोड़ दो, leave 10 lines, a space of 10 lines, so please leave. After that you write Pauli exclusion principle, PAULI, Pauli exclusion principle. Written, Pauli exclusion principle, right, it states that no two electrons in an atom, it states that no two electrons, TWO2, no two electrons in an atom can have the same set of all four quantum numbers. Same set of all four quantum numbers. ठीक है? उसका नेक्स्ट पॉइंट में राइट, इसी का पॉली एक्सक्लूजन में ही राइट, only two electrons may exist in the same orbital. Only two electrons may exist in the same orbital, and these electrons must have opposite spin. ठीक है? फिर 4 लाइन छोड़ दो, स्पेस, 4 लाइन स्पेस यू लीव. नेक्स्ट यू राइट Hund's rule, HUND, Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, right. It states that pairing of electrons in the orbitals, belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each.
ब्रैकेट में लिखना सिंगली ऑक्यूपाइड, ब्रैकेट में लिखना सिंगली ऑक्यूपाइड, ओके। इतना में हम लोग को रखना पड़ेगा ये समझ। फर्स्ट इज योर अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ's प्रिंसिपल। अफबाउ ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो इसको कैसे करने के लिए 1s पहला 1 का s पॉसिबल, 2 का s 2 का p पॉसिबल, 3 का s 3 का p 3 का d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f 5g एंड सो ऑन चलते जाएगा। तो फिर 6s 6p 6d 6f 6g एंड सो ऑन। वैसे 7s 7p 7d 7f 7g एंड सो ऑन ऐसे चलते जाएगा। तो इसको जब हम लोग एनर्जी वाइज कैसे लिखेंगे, तीर चलाएंगे एरो, बट एरो यहां से चलाएंगे। तो फर्स्ट ये कटा, पहला एरो जब चलाया कौन कटा, s, सेकंड एरो फिर चला 2s कटा, तीसरा एरो चलाया, पहले 2p कटा फिर 3s, चौथा एरो, पांचवा एरो, छठा एरो, सातवां एरो, तो समझ लो ये 5d यहाँ, ठीक है। सो एरोज आर कमिंग लाइक दिस। तो जो जो जैसे मारा उसके हिसाब से एनर्जी होता है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका, 1s, लेस देन फिर कौन होता है, 1s पहले मर गया ना, तो उसका ताकत कम था इसलिए पहले मरा, फिर कौन मर रहा, 2s। फिर ये जो एरो आ रहा है पहले किसको मारना है, 2p, हां तो लेस देन 2p, फिर आएगा 3s, लेस देन 3p, लेस देन 4s। ये वाला एक ट्रिक है सॉल्व करने में जल्दी। फिर कौन आएगा 3d, लेस देन 4p, लेस देन 5s, करके देख भी सकते हो तुम n प्लस l वैल्यू के साथ। फिर कौन आएगा 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, फिर 4f 5d। अभी पीरियडिक टेबल कैसे होता है और क्यों होता है तुम्हें समझ में आएगा, 6p 7s एंड सो ऑन, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट नाउ। करो एनर्जी वाइज ऐसे ही होता है। नेक्स्ट कम्स योर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है ना। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। 4 चीज होते हैं ना। क्वांटम नंबर क्यों होता है पता है, लोकेशन जानने के लिए, इलेक्ट्रॉन है कहाँ, 1 में है, 1 का कहाँ पे है, s में है, s का कहाँ पे है। जैसे क्वार्टर नंबर है तो सेक्टर 4 b ब्लॉक, जैसे यहाँ पे p ब्लॉक 4p का कहीं पे है। तो सपोज मैं एक दो सेट रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज हम लोग बात कर रहे हैं 4p का, 4p में कोई है सपोज में, तो 4p का अगर बात हो रहा है, 4p का सोचो x में है मान लो, ठीक है। सबसे पहला समझो n क्या हो जाएगा यहाँ पे 4p में ऐसे 3 होगा ना, तो ये px हो जाएगा, ये py हो जाएगा, ये pz हो जाएगा, ठीक है। n हो गया 4, p को देख के हम लोग क्या लिखेंगे, l क्या हो जाएगा 1। तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन का लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन 1 और एक इलेक्ट्रॉन नंबर 2, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, px में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। हाँ तो इसका भी क्या होगा 4, l कितना हो जाएगा 1, n कितना हो जाएगा -1, क्योंकि m क्या होता है -1 to लेके 1 तक, n होता था ना -l to l, तो -1 0 1 ऐसे ही लिखते थे ना। तो m भी क्या हो गया -1। बट स्पिन क्वांटम नंबर के पास जब आएंगे, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो एक का क्या होगा +12, दूसरे का क्या होगा -12। तो भले ही 3 तो सेम हो गया, बट चौथा कभी भी सेम हो पाएगा क्या? तो ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स कैन नेवर बी ट्रू। तो स्पिन क्वांटम नंबर तो कभी ही 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता। और अगर स्पिन को सेम करना था, इसका +12 इसका +12, तो फिर कौन बदल जाएगा m, इसका -1 है, इसका क्या हो जाएगा 0, तो m बदल जाएगा कि नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो कैसे नहीं होगा समझ के पॉली एक्सक्लूजन, राइट इट डाउन। नेक्स्ट है हुंड्स रूल ने क्या कहा ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें क्या कहा हुंड्स रूल में, सपोज कोई भी एक एलिमेंट है, मान लेते हैं हम लोग का 3s या 3p को हम लोग भर रहे हैं, 3p को फिलिंग का चल रहा है, तो 3p में कितना व्यवहार होगा 3,
तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरते हैं, जैसे कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे सोचो लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लिथियम बेरिलियम फिर बोरोन आएगा तो एक और बढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड फर्स्ट वन बाय वन, मतलब पहले एक भर, एक ही बार में दो नहीं भर सकते, पहले एक फिर यहाँ एक फिर यहाँ एक, उसके बाद पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो पहले फर्स्ट सिंगली फिल्ड, उसके बाद पेयरिंग अप, पेयरिंग अप ऐसा होगा तो फिर यहाँ पे ऐसा आएगा। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टेप 1 कैसे है। स्टेप 1 में क्या होगा, खाली एक, स्टेप 2 में इसके बाद कहाँ पे इधर आए, स्टेप 3 में इसके बाद फिर यहाँ है, चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 1 2 3 हुआ, फिर चौथा इधर है, पांचवा 1 2 3 फिर चौथा फिर पांचवा, एंड सिक्स्थ 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बात हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, 3 होने से ऐसा होता है, 4 होने से ऐसा, 5 होने से ऐसा, 6 होने से ऐसा। अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से किस हिसाब से हमें फिलिंग करना है, फर्स्ट 1 by 1 you have to fill all the orbitals of a shell and then pairing up takes place। ठीक है, अभी हाउ टू राइट कॉन्फ़िगरेशन, पहले कौन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। फिर कौन आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर कौन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ, आगे भी लिखेंगे हम लोग। तो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। पहला ऑर्बिटल कौन आता है, 1s। एनर्जी वाइज लिखे थे, एनर्जी वाइज क्या लिखे थे, 1s के बाद कौन आता है, 2s, फिर कौन आता है 2p, फिर कौन आता है 3s, इसको बोल दो, 3s के बाद कौन आता है 3p, फिर 4s, वेरी गुड, फिर 3d, फिर कौन आता है 4p। ऐसे चलते जाता है कि नहीं, देखो उसको याद रखें। 3p के बाद 3d बोल देते हैं बहुत लोग, बट नहीं, 3p के बाद क्या था 4s, कॉपी में चेक कर लेना। आई हैव टॉट इन द लास्ट पार्ट, देखना ये ऑर्डर था एनर्जी का। तो एनर्जी वाइज फिलिंग करेंगे, तो 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 1s क्या होगा 1। s में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। तो सेकंड में हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम बढ़ते जा रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो अभी कितना हो जाएगा 1s 2। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3। तो पहले 1s में 2 तो भरेगा, फिर कौन खुलेगा 2s, 2s में कितना जाएगा 1, क्योंकि s में 2 से ज्यादा तो रह नहीं सकता ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो यहाँ पे पहले 2 भर के फिर यहाँ पे जाके 1 रखेगा, समझ पाए। फिर बेरिलियम का कितना इलेक्ट्रॉन, 4। तो पहले 1s में 2 रहा, 2s में भी कितना रहेगा 2, तो टोटल 4 हो गया। अभी यहाँ पे और नहीं रह सकता, फिर कहाँ जाएंगे p, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p में कितना 1, p में कितना तो रह सकता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, p में 3 तो है ना, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 6 ना। हाँ, तो बढ़ते बढ़ते जाएगा 1s2 2s2 फिर कितना p में 2, फिर 1s2 2s2 2p 3, फिर 1s2 2s2 2p 4, 1s2 2s2 2p 5, 1s2 2s2 2p 6। p खत्म होते ही नेक्स्ट में कौन दिख रहा है 3s। फिर यहाँ पे क्या होगा 1s2 2s2 2p 6 3s 1, फिर 3s में 2 तक जाएगा तो 1s2 2s2 2p 6 3s 2, समझ गया। फिर 3s भरती, क्योंकि s में मैक्सिमम कितना रह सकता है 2 ही रह सकता है ना, उसके बाद किसके पास आ जाएगी 3p के पास। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 1, और ऐसे ही चलते जाएगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2, फिर 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 4, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 5, फिर 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6, p में 6 हो गया, तो 3p के बाद कौन खुलेगा 4s। तो अभी क्या होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6, उसके बाद क्या 4s 1, फिर 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s 2। अभी समझ पाए।
तो पीरियोडिक टेबल में भी जब हम लोग भरते थे पहले 1s1 हाइड्रोजन इधर है, 1s2 मतलब हीलियम इस कोने में है, उसके बाद क्या है 1s2 2s1 तो हाइड्रोजन हीलियम हो गया, फिर लिथियम आ रहा है, समझ रहे हो ना 2s1 में, क्योंकि देखो इसका भी 1s1 था, इसका 2s1 हो गया तो उसके नीचे ही आया कि नहीं। फिर लिथियम के बाद कौन है बेरिलियम यहाँ पे, ठीक है, ये s ब्लॉक एलिमेंट्स होते थे। तो बेरिलियम के बाद बोरोन आते ही बोला जाता था ना p ब्लॉक एलिमेंट, जो क्लास 10 में पढ़ते थे ट्रांजिशन के बाद इधर का पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लिथियम बेरिलियम के बाद बोरोन देखो चालू हुआ p1 से to p1, तो बोरोन यहाँ से हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, देखो ये p1 p2 p3 p4 p5 p6, p6 तक यहाँ है तो p1 p2 p3 p4 p5 p6 एक साइड हुआ। अभी वापस देखो कौन चालू हुआ 3s1 3s2, तो तीसरा पीरियड, ये पहला पीरियड था, ये दूसरा पीरियड है, ये तीसरा पीरियड का s1 s2 मतलब सोडियम मैग्नीशियम कहाँ रहेगा, सोडियम मैग्नीशियम इधर आया, वापस से p ब्लॉक एलिमेंट कहाँ से चला इधर से, समझ रहे हो ना कौन है एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, देखो p1 से लेकर p6 तक आर्गन p6 में खत्म हुआ कि नहीं हुआ। फिर वापस कौन चालू हुआ 4s1 4s2, तो कौन सा पीरियड नंबर 4, और s1 s2 में कौन कौन है पोटेशियम कैल्शियम, समझ गए। इसके बाद कौन खुलता है देखो 4s के बाद कौन है 3d में कितना एलिमेंट रहता है 10 एलिमेंट, तो ये 10 एलिमेंट यहाँ बीच में है 10 एलिमेंट्स। अब समझ पाए पीरियोडिक टेबल बना कैसे है, क्योंकि बीच में कितना एलिमेंट रहता था 10 तो रहता था कि नहीं, और वो 10 अभी देखो कैसे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आ रहा है 3D एलिमेंट, उसको ट्रांजिशन बोलते थे। 3D में 10 होने के बाद फिर 4p में कितना रहता है 6 तो 4p फोर्थ पीरियड का p ब्लॉक, तो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, आप समझ गए कैसे लिखने का तरीका होता है क्या। क्यों 3D इधर नहीं है, थर्ड पीरियड में D नहीं आता, पीरियोडिक टेबल में भी थर्ड में है क्या D, 3D होता है बट आता कहाँ पे फोर्थ पीरियड में, ये बीच में 3D आता है क्योंकि एनर्जी वाइज हम लोग स्टोर करते हैं। अब समझे पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, पूरा फंडा क्लियर हो गया तो या कोई डाउट है, समझ गए। 3D एलिमेंट्स कौन होता था, कैल्शियम के बाद क्या कौन शुरू होता था स्कैंडियम, तुम्हारा होमवर्क है स्कैंडियम से लेके कहां तक करना है, स्कैंडियम के बाद कौन आता है नहीं पता, स्कैंडियम वैनेडियम ट्रिटियम फिर क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक, जिंक कौन होता है 30 नंबर में होता है, इसका 21 और इसका कितना होता है 30, ठीक है। तो जिंक 30 तक आता है, 21 से 30 जिंक यहाँ तक आएगा, उसके आगे फिर करेंगे। अंडरस्टूड हाउ पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन का एक आइडिया तुम्हें दे दिया मैंने, राइट इट डाउन। थैंक यू एवरीवन। सो और एक पार्ट बचा है, द चैप्टर विल कंप्लीट।